Namaste and welcome to Shri नमस्ते। Ashish Gupta ji of Jivika Ashram, Jabalpur. Sir, thank you so much for joining us for this conversation for the Center for Embodied Knowledge. Thank you, Aparna ji. I really appreciate for inviting me to this talk. Thank you. And yeah, I also was very thrilled to see the theme of your next Sammelan, Bhiksha Right, Vritti Sammelan. It's right. something that is, now in the fringes of Bharatiya society. And I have the connection because one of my ancestors used to practice Unchavritti in Tamil Nadu. Mm, He is a Carnatic right. composer, so he used to Mm, travel around singing his compositions. great. Mm. So could you tell us about why you decided to have a Sammelan on this theme? Right. See, as the name suggests, Bhiksha Vritti. So it is one of the vrittis of the vrittis, total vrittis that we used to have. And vrittis, when we say vrittis over here means the occupations. So it is interesting to know, which we have most of us have forgotten, that bhiksha was also a vritti of lot of jatis in the society. Lot of people, lot of society, significant portion of the society were surviving on this vritti, which is called bhiksha vritti. So bhiksha vritti, and when we say this, lot of jatis, so it is sort of considered. Dharampalji and some of the other people have said that more than 7,000 jatis used to survive on this. So there were a lot of people, the different varieties of this. So इसमें से बहुत सारे लोग जो हमारा मनोरंजन करने के लिए आते थे, इंटरटेनमेंट करने के लिए, कोई सांप को लेके आता था, कोई मदारी को कोई बंदर को लेके आता था, कोई भालू को लेके आता था, बेयर को लेके आता था, कोई बैल को लेके आता था। ऐसे बहुत तरह के लोग थे जो एंटरटेनर्स थे। बहुत तरह के लोग थे जो डिफरेंट डिफरेंट रोल्स सोसाइटी में प्ले करते थे, जिनको सोसाइटी ने स्टेब्लिश किया हुआ था। They had sort of organized them in the society. So it was not today's kind of thing what we equate them with the begging. Begging तो एक बहुत ही अलग तरह की चीज है, और भिक्षावृत्ति एक अलग तरह की, दो विपरीत अवधारणाएं हैं। तो ओके। हाँ, बताइए। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि आज जो 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 चीज है भिक्षावृत्ति और बेगिंग, जो भिखारीपना है, भिकमंगा है, ये दो एकदम विपरीत अवधारणाएं हैं। भिक्षावृत्ति को कभी समाज ने, हमारे समाज में व्यवस्थित किया गया था, रिकॉग्नाइजिंग एंड रियलाइजिंग द रोल्स दैट दे वर प्लेइंग इन दिस, एंड their roles and responsibilities were fixed, like what kind of roles they will play in the society for which they will be offered भिक्षा। वेरएज बेगिंग में आज ये है, भिक्षावृत्ति में यो भिखारीपना में आज सोसाइटी में उनका कोई रोल नहीं है। सो दे आर नेग्लेक्टेड पार्ट ऑफ द सोसाइटी। उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो तो एक बर्डन टाइप का, एक जिस जिस फॉर्मेट में अभी है वो सोसाइटी के लिए एक बर्डन है। लेकिन कभी जो भिक्षावृत्ति हमारी हुआ करती थी, ये इसके बहुत बड़े बड़े रोल्स थे। मैं आगे आपसे बातचीत करूंगा तो बताऊंगा उनको कि क्या क्या रोल्स थे उनके, और उन रोल्स के कारण उनको भिक्षावृत्ति ऑफर की जाती थी। तो वो हमारे एकदम पूजनीय जैसे लोग हुआ करते थे। उनको जिस तरह से आज हम लोग भिक्षा देके किनारे कर देने वाली चीज है या दुत्कारने वाली चीज है, उस तरह का पूरा चीज नहीं होता था। तो समाज में ये चीज हम लोग भूल रहे हैं, बहुत सारे लोग भूल ही चुके हैं। ये चीज फिर से लोगों के प्रकाश में आ सके, लोग उसको जान सके, people come to know, in order to let people know about this entire thing. That is why we have decided to organize this event called Bhikshavritti Utsav. Sir, when did the shift from begging as a mode of just negating your ego, which our our acharyas did. They didn't actually have to do anything in return for asking. Just their role as sadhus and gyanis was enough for them to get bhiksha. So when did it Yeah, shift yeah. to where you No, have to and do not only something? yeah, yeah, and see, when we say bhiksha, it was not just the sadhus and the gyanis who were there. There were a lot of castes, as I said, बहुत सारी जाति लोग थे जो ये काम भिक्षावृत्ति के ऊपर आधारित जीवन। सुबह हमारे यहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि सुबह 3-4 बजे से
At early as 3 o'clock, 4 o'clock, people used to come and sing different kinds of songs. तो सुबह के समय में भैरवी राग सुनना होता है तो भैरवी राग सुनाने वाले होते थे। जब आप काम पे जाने वाले रहते हैं तो उसमें वैरागी के गाने सुनने की समय होता है तो वैरागी के गाने सुनाने वाले होते थे। जब आप सुबह नहा धो के रंगोली डालती रहती थी महिलाएं तो उस समय दूसरे तरह के लोग आया करते थे जो आपको अलग तरह के गाने सुनाया करते थे। तो ये जो पूरा था ये केवल ज्ञानी सन्यासी वाला बस मामला नहीं था, बट दीज वर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। फिर उसके बाद ये सुबह 3-4 तरह के लोग आते थे हमारे इस इलाके में। उनको हरबोले बुआ बोला जाता था, वसुदेवा बोला जाता था, दुजनिया बोला जाया करता था। मैं तेलंगाना में रविंद्र शर्मा गुरु जी के साथ रहा हूँ तो वहाँ जंगम लोग आते थे, बाल संतुलु लोग आते थे, बुड़बुकुलु लोग आया करते थे। तो ऐसे बहुत सारी जाति के लोग थे जो सुबह जंगम लोग आया करते थे, सुबह ही जो आया करते थे, हरिदासुलु आया करते थे। तो ये समझ लीजिए 8-9 बजे तक उनका, सुबह 3-4 बजे से लेके 8-9 बजे तक उनका चलता रहता था। फिर उसके बाद जब ये गांव में सब लोग काम करने चले जाते थे, कारीगर लोग अपने कामों में, किसान अपने कामों में, तो गांव में जो बच्चे बड़े बूढ़े और जो कारीगर लोग जो गांव में ही रह के काम करते थे उनके मनोरंजन के लिए बहुत तरह के लोग आते थे। कोई सांप लेके आ रहा है, कोई भालू लेके आ रहा है, कोई बैल लेके आ रहा है, कोई घोड़ा लेके आ रहा है, कुछ नट लोग आया करते थे, कोई जादू दिखाने वाले लोग आया करते थे, अलग अलग तरह का मनोरंजन करने वाले लोग आया करते थे। तो ये इनको रविंद्र शर्मा जी इनको मनोरंजन तो करते ही थे, बट मनोरंजन के साथ साथ ये बहुत तरह की जानकारियां पहुंचाया करते थे। इसलिए उनको लोग मोबाइल गुरु टाइप बोल सकते हैं, मोबाइल शिक्षक जैसे बोल सकते हैं कि घर में पहुंच के आपको वो सारा चीज। एंड उनको रविंद्र शर्मा जी तो बोला करते थे घर पहुंच लाइब्रेरी, कि घर में पहुंच डोर डिलीवर्ड लाइब्रेरी। तो जैसे उदाहरण देके बताएंगे, अब ये सांप का जो आदमी जो लेके आते थे, सांप लेके आते थे, वो उनका 1-1.5 घंटे 2 घंटे का सेशन हुआ करता था। उसमें मनोरंजन करते थे, नचाते थे, ये करते थे, बट उसके साथ साथ दुनिया भर की बातें बताया करते थे। कितनी तरह के सांप होते हैं, कितने जहरीले होते हैं, कितने नहीं होते हैं, कितने सांप के काटने से क्या होता है, उसकी पहचान कैसे कि ये वही सांप है जिसने काटा हुआ है या कोई दूसरा सांप है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है वो बताया कर। फिर उसके बाद उस सांप को यदि काट ले रहा है तो उसको जहर उतारने के तरीके क्या है, घर में जो कोई सांप घुसा है तो उसके निकलने की क्या पद्धतियां हैं, कैसे निकाला जाता है, किस तरह से किया जाता है, वो बताया करते थे। तो ये जितनी हम 8-10 किताबें पढ़ के जो जानकारी हमको मिलती है वो 1-1.5 घंटे के सेशन में वहां मिल जाती थी। इतना जबरदस्त उनका लाइब्रेरी। फिर उससे भी बड़ा काम वो करते थे, वो ये करते थे कि वो बच्चों के सिर गले में, बाकी लोगों के गले में सांप डाल देते थे। उसके लिए 2-4-5 रुपए जो भी लेते थे उनसे अलग बात है, लेकिन सांप डालने से क्या होता है कि आपका डर जो है वो पूरा निकलता है। आज हम किसी भी चीज के दुश्मन क्यों बनते हैं? वी बिकम एनिमी बिकॉज वी आर फ्राइटेंड ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, है ना? दैट्स व्हाई बिकम एनिमी फॉर दैट। तो जब वो आपको इतना सहज, आप उसको छू के देख लेते हैं, उसको पहचान के देख लेते हैं, उसको उठा के देख लेते हैं, तो आपके अंदर से उसका डर चला जाता है। जब आपको उसका डर चला जाता है तो आप उसके भी फ्रेंड हो जाते हैं। तो उसको आपको उसको उससे आप फिर आपको आपका दुश्मन नहीं रहता है। तो ऐसे करके पर्यावरण का भी बहुत बड़ा वो सेवा करते थे। आज हमारे पास सांप घर में निकल आए तो उसका एक ही फेट रह गया आजकल कि उसको मारना ही है। हर कोई यही काम करता है। लेकिन कभी हम जानते थे कि नहीं भाई ये मारने वाला है, ये नहीं मारने वाला है, ये हमारे बाकी चीजों में हेल्प करने वाला है, नहीं हेल्प करने वाला है। और यदि वो मारने वाला भी, मतलब काटने वाला भी है, जहर वाला भी है, तो उसको कैसे निकाल के कैसे वो करना है, तो ये सारी पद्धति हुआ करती थी। दैट काइंड ऑफ पीपल दे वर देयर। तो वो घर में ज्ञानी दूसरे तरह के ज्ञान बांटने वाले हुआ करते थे, उस चीज के बारे में बताने वाले होते थे। तो एक तरह से लोक शिक्षक जिसको कहा जाए, घर घर पब्लिक टीचर्स टाइप का। तो उनको कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ऐसे बहुत सारे। फिर उसके बाद जब ये 5-6 बजे तक ही चले जाते थे तो शाम को फिर जो दूसरी तरह का मनोरंजन करने वाले लोग हैं वो आया करते थे। जाति पुराण सुनाने वाले लोगों की जातियों के वंशावली वृद्धावली सुनाने वाले लोग होते थे कि आप अलग अलग जातियों की, हमारे जितनी जाति है उन जाति पे निर्धारित आश्रित रहने वाली बहुत सारी जातियां होती थी। तो नाई के जाति पुराण सुनाने वाले होंगे, कुम्हारों के जाति पुराण सुनाने वाले होंगे, ब्राह्मणों के जाति पुराण सुनाने वाले होंगे, बनियों के जाति पुराण, चर्मकारों के जाति पुराण सुनाने वाले होंगे। तो ऐसे हर जाति के जो लोग हैं उनके जाति पुराण सुनाने। तो उन जाति का पुराण का मतलब होता था उनकी पूरी वर्दावली, वो कहाँ उनकी उस जाति की उत्पत्ति कहाँ कब से हुई है, कैसे हुई है, उस जाति का अलग अलग जातियों से संबंध क्या है, कब कब किस किस कौन से समय में कौन सी चीज उनको निषेध हो गई है, कौन सी चीज उनके लिए एक लागू की गई है। तो ये सारा कुछ जो है, और फिर वो पूरी हिस्ट्री
उस जाति की अलग लेके घर के बारे में आज भी आपको राजस्थान वगैरह में ये सारे लोग मिल जाते हैं, साउथ में बहुत सारी जगहों पे मिल जाते हैं। तो ये सारे लोग इस बार के कार्यक्रम में हमारे पास आएंगे। जो वंशावली सुनाने वाले लोग हैं, जाति पुराण सुनाने वाले लोग हैं, अलग अलग माध्यमों से, पटचित्र के माध्यम से, कहीं किसी चीज के माध्यम से, ये सारे लोग आपको यहाँ इस उत्सव में मिलेंगे। सर, इन लोगों के व्यक्तित्व के बारे में हमें क्या मालूम है? क्योंकि आजकल बहुत फैड है बोलना कि मैं मिनिमलिस्टिक जीवन जी रहा हूँ, लेकिन ये लोग सिर्फ एक दिन की जो उनकी चाहते थे, उतना ही वो खाते थे या कमाते थे। जी तो जी। लेकिन अब नहीं। इट इज अ बिग फैड, बट उन्होंने लाइक दे वर हम्म। प्रैक्टिसिंग इट फॉर सो लॉन्ग। ट्रू 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 ट्रू। सी, जो हम भिक्षावृत्ति बोल रहे हैं, तो रविंद्र शर्मा जी सारी वृत्ति जितनी है, जितने भी ऑक्यूपेशन है हमारे खासकर भारत देश के इस पूरे भूभाग में, तो उसमें उसको तीन वृत्तियों में विभाजित करते हैं। एक कर्म वृत्ति, दूसरी वैश्य वृत्ति और तीसरी भिक्षावृत्ति। कर्म वृत्ति जो बोलते हैं, ऐसे सारे ऑक्यूपेशन जो जड़ पदार्थ से, जड़ पदार्थ मतलब स्टैटिक आइटम से, जो जो कुछ भी सृष्टि करते हैं। तो लोहा से करने वाले लोहार हुए, मिट्टी से करने वाले कुम्हार, सोने से करने वाले सुनार, वीवर्स जो है, बांस का काम करने वाले, जितने भी जड़ पदार्थों से जो भी सृष्टि कर रहे हैं, क्रिएशन कर रहे हैं कोई, तो वो सारे लोग कर्म वृत्ति में आते थे। दूसरी वृत्ति होती थी वैश्य वृत्ति। उसमें जो चेतन से चेतन की वृद्धि करता है, मतलब जो लिविंग चीजों से उसको बढ़ाता है। से फॉर एग्जांपल एक किसान है, वो जमीन में 100 बीज डालता है, उससे लाखों बीज पैदा करता है। एक जुलाहा, एक ग्वाला है जो गाय पालते हैं, तो वो एक गाय से 10 गाय पैदा करते हैं। या बकरी भेड़ बकरी चराने वाले हैं, मछली पालन करने वाले हैं, वो कुछ बीजों से बहुत सारे मछलियां पैदा करते हैं और बहुत सारी भेड़ बकरी है। तो ये सारे जो लोग हैं ये वैश्य वृत्ति में आते हैं, और इसी में वाणिज्य करने वाले एक लोगों का बहुत छोटा सा समूह होता है जो वैश्य वृत्ति में आता है। इन दोनों वृत्ति के लोगों का काम होता है कि समाज को समृद्ध करना, भूमि को समृद्ध करना, समृद्ध प्रॉस्पेरस करना, है ना। लेकिन जो भिक्षावृत्ति वाले लोग हैं, इनका काम होता है कि समृद्धि से भी निर्लिप्त रहना, to be detached from the prosperity. Prosperity alone is not the everything in life. You need to be detached from the prosperity. And as you are saying, the minimalistic approach is the modern concept. But our concept is not to be attached with the samriddhi, the prosperity. So you have to have prosperity, but you have to remain detached with this particular thing. So this is what they were sort of teaching us, preaching us by their वर्ड्स ऑल्सो एंड ऑल्सो बाय देयर एक्शंस, कि कोई कलेक्शन नहीं रखना है, कोई एक्यूमुलेट करके नहीं। जो आज हम लोग बात करते हैं पूरा सब कुछ अपरिग्रह जो बात होती थी, तो ये लोगों को सिखाते थे बकायदा कि अपरिग्रह से कैसे रहा जाता है। और ऐसा नहीं था, क्योंकि ये चूंकि किन्हीं जातियों पर आधारित हुआ करते थे, तो इनके पास खाने का नहीं है ऐसा नहीं है, ये सारी चीजें तो होती थी, बट दे वर नॉट एक्यूमुलेटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। तो वो काम उनका एक्यूमुलेशन से दूर रहने की बात बताते थे, प्रॉस्पेरिटी से भी डिटेच रहने की बात होती थी। और ये अपने वर्ड से, डीड से, सारी चीजों से वो समाज में फैलाया करते थे। सर, जो भिक्षा वर्ड है वो इट इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द पर्सन हु इज डूइंग दिस एंड सीकिंग आर्म्स। जो दे रहा है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? जो दान दे रहा है उसकी क्या जी कर्म जी है? जी जी जी। देखिए, आज हम लोग हमेशा हमारे यहाँ तो जो कहा जाता है कि एक हाथ से दे और मतलब एक हाथ से दे तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि क्या दे रहे हैं। तो इट वाज लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग। और इसीलिए जितने भी हम जो हम बड़े लोग अपने आप को माना करते थे, तो दान देते समय इनकी भावना बहुत छोटी होती थी। तो बकायदा उनको सीधा मतलब एक सूप में सारा कच्चा सामग्री होती थी, तो जिसमें दाल है, चावल है, जो भी चीज वहां का जो अनाज है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, वो अनाज है, सब्जियां हैं, नमक मिर्ची मसाले, ये सारी चीज, तेल भी उसमें रख के सीधे में उनको दिया जाता था, एक सूप में रख के, और इसको सीधा बोला जाता था। और उसके साथ साथ जो भी और भी सामग्री है, कहीं कपड़े देने हैं, कहीं और आपको कुछ चीज देनी है, और इसके बाद उनको प्रणाम किया जाता था। ये पद्धति एक रहा करती थी जब हम लोग देते हैं। आज भी हमारे यहाँ, हम लोग नर्मदा के किनारे पे है, तो जो नर्मदा यात्री निकलते हैं, जो नर्मदा परिक्रमावासी निकलते हैं परिक्रमा करने के लिए, तो उनको इसी तरह से ही सीधा दिया जाता है। तो जो आजकल जो देने का तरीका है वो पूरी तरह बदल गया है। पहले देने वाला जो होता था वो अपने आप को बड़े शर्म और संकोच के साथ में दिया करता था, और आज जो है वो देने वाला एक बड़ा दूसरी तरह से हो गया। तो आज की परिस्थिति से हम लोग जब भिक्षावृत्ति को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो कोई देने वाला है, कोई लेने वाला है।
जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ करता था। जब हम पुजारी को देते हैं अपनी, जो घर में अपनी खासकर नॉर्थ इंडिया में जब बच्चियां शादी होकर घर आती हैं तो जो मायके से जब भी जाती हैं तो उनको विदाई होती है, या जो भी जो सगुन जो अतिथि भी आते हैं उनको भी विदाई के समय में दिया जाता है। तो वो देना उस तरह का देना हुआ करता था। उनके उनका जो मानस होता था कि भाई आप हमको दे के हम लेके हमसे हम पे उपकार कर रहे हैं। आप चाहते तो इसको मना भी कर सकते हैं, लेकिन आप हमको लेके हम पे उपकार कर रहे हैं। लेकिन जो आजकल जो हो गया है वो पूरा उल्टा हो गया है। उसके पीछे के कारण रहे हैं, क्योंकि जब देना हमारे यहाँ जो चालू हुआ, वो जब से मान, जो हमारे यहाँ की पद्धति रही है लोगों का मान करने की, जब मान के बदले इनाम आ गया है तो ये पूरी पूरा पूरा चीज ही एकदम अलग हो गया। तो मान और सम्मान हमारे यहाँ चीजें हुआ करती थी, और ये तो एक टोकन हुआ करते थे जिसके माध्यम से मान और सम्मान किया जाता था। when this got changed to इनाम, the prize, then then the entire thing has got changed. And this happened after, मतलब वो तो हम सब जानते हैं कि ब्रिटिशर्स का जो इन्फ्लुएंस हुआ, जिस तरह से बहुत सारी चीजों समाज में छोटी छोटी चीजों में उनके इन्फ्लुएंसेस आए, उसके कारण धीरे 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 ये चीजें प्रवृत्ति बदल के चली गई। So, what are the main critical arts that have disappeared or shifted because this tradition has changed? कुछ देखिए ये होंगे बहुत जो जबरदस्त, जी 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 हम्म, जी। देखिए मैं बताऊं आपको कि हमारे यहाँ आर्ट फॉर्म, जिस तरह से आज हम लोग आर्ट को देख रहे हैं, कल्चर को देख रहे हैं, ये उस तरह से कभी रहा नहीं है। 100 150 200 अभी भी बहुत सारी जिंदा है, इसीलिए हम लोग को दिख पा रहे हैं, है ना। तो दे हैव नॉट डाइड अवे कम्प्लीटली, दे आर स्टिल देयर, दैट्स व्हाई वी आर सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल। बट जस्ट इमेजिन हैड दिस बीन इन द फुल स्विंग, जब सोसाइटी में पूरी तरह से ये लागू होता तो कितने तरह की चीजें होती, कितने तरह की सारी चीजें होते। तो इसमें सबसे बड़ी चीज जो है कि ये सबसे बड़े जो बाकी भूमिकाएं जो हम लोग बात कर रहे थे, उसमें एक सबसे बड़ी भूमिका थी कि समाज में कला के स्तंभ को लेके रखने वाले, हमारे समाज पूरा कला, जैसे आजकल लोग बोलते हैं कि वी गिव 2 hours फॉर आर्ट एंड कल्चर इन अ डे, और वीकेंड्स वी गिव 2 hours फॉर आर्ट एंड कल्चर एंड गो एंड अटेंड दिस प्रोग्राम। सो इट वाज नॉट लाइक दिस। The entire lifestyle used to be artistic, aesthetically very, very, very sort of high level. So तो ये जितने कला के फॉर्म है, ये जितने भी हम जो जिनकी बात कर रहे हैं, जितने भी कारीगरों की ये भिक्षुक वाले बात कर रहे हैं, इनमें से अधिकांश लोग अपने स्वयं के वाद्य यंत्रों के साथ आते थे, their own musical instrument, and they were all varying from one the occupation to occupation. एक भिक्षावृत्ति वाला है तो केवल शंख बजाएगा, एक घंटा लेके आएगा, कोई बीन लेके आएगा, कोई ढपली लेके आएगा, कोई डमरू लेके आएगा। तो ऐसे बहुत तरह के जो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, दे वर लाइव बिकॉज ऑफ देम ओनली। नाउ आफ्टर दे हैव गॉट एक्सटिंक्ट और गेटिंग एक्सटिंक्ट, all those instruments itself have gone from our society. तो कला का एक बहुत बड़ा जो रूप था, वो धीरे 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 धीरे, फिर इसके बहुत सारे आर्ट फॉर्म, जादू जो आज मैजिक मैजिक वाली जो बात हुआ करती है, घर में बैठ बैठ के आपको दिखाया करते थे, वो अब मैजिक जो केवल कुछ अब तो वो भी खत्म हो रहा है। तो एक बड़े बड़े जगहों पे, शहरों में कभी कभार जो सर्कस वगैरह लगता है, उसमें थोड़ा बहुत होता है। गांव में पहुंच पहुंच के बहुत तरह की चीजें, कोई इतने बड़े बड़े पत्थर खा रहा है, कोई पेट में से खील निकाल रहा है, कांच खा रहा है, ऐसे बहुत तरह की चीजें बेसिकली वो लोग दिखाया करते थे, करके दिखाते थे, दैट हैव ऑल गॉन एक्सटेंट। फिर जो जो बहुत तरह की फिजिकल एक्सरसाइजेज और नट वगैरह के जो काम होते थे, सर्कस में नट वाले जो काम हुआ करते थे, कि कोई रस्सियों के ऊपर चल रहा है, जमीन में इस तरह से चल रहा है। हमारे यहाँ कुछ लोग आया करते थे, बचपन में मैंने खुद देखा है, 3 3 दिन 4 4 दिन तक कंटिन्यूसली साइकिल चला रहे हैं। तो ऐसे बहुत तरह के फॉर्म्स हुआ करते थे। नीचे जो समाधि लगा रहे हैं, 2 दिन 3 दिन की समाधि लगी हुई है, पूरा एयर कनेक्शन नहीं है, उसके बावजूद वो कर रहे हैं। तो योगा के डिफरेंट फॉर्म जो हुआ करते थे, योगासन के, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे, तो म्यूजिक जा रहा है, करतब जा रहा है। फिर उसके बाद एक और चीज जो थी, जानवरों को वश में करना। आज हम लोग इंसानों को ट्रेनिंग की बात करते हैं, और जब हम इंसानों को ट्रेनिंग नहीं कर पाते जो कि हमारी भाषा समझते हैं, तो वी हैड पीपल हु वेर ट्रेनिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल। इतने तरह के बंदरों को सिखाना है, भालू को सिखाना है, हाथियों को सिखाना है, घोड़ों को सिखाना है, बैलों को सिखाना है, गायों को सिखाना है, इन सब के गधों के साथ में बहुत सारे लोग आया करते थे। तो दीज वेर द स्किल्स दैट वेर देयर इन द सोसाइटी विच आर गेटिंग एक्सटेंड because of this Bhikshavritti, extension of the Bhikshavritti community from the society. सर हमारे देश में वन ऑफ द मोस्ट influential and
or spiritual movements was the Bhakti movement. And this was Right. probably the best way of spreading the message of Bhakti. It happened in Andhra Pradesh, it happened in Karnataka through Harikatha, it happened in Tamil Nadu. So And was this also in also North there India in the also, north? this Tulsi, Yeah. Kabir, yeah, Tulsi, Kabir, Vedars, everybody, yeah, yeah. Yeah, So so you were what's the saying something? role of this tradition for the spread of bhakti and social awareness among people? Because the language was very simple, which was the people could Right, understand. right. So True. the Vedic message could be given in a more simpler form. Yeah. See, the kind of movement that you're talking about that is spread only for a certain period of time, as you said. But these things, those things that which I am mentioning about the Bhikshavati, they are daily events which were happening deep in the society. See, bhakti movement, which the kind of bhakti movement that we are discussing is a periodic thing which has spread all the across the society. तो भजन हो रहे हैं, बाकी सारी जगह पे उनके अलग अलग तरह के भजन आए, सोसाइटी में गांव में भजन मंडलियां बनी, ये सारे काम तो हुए, बट उनके साथ साथ ये काम डेली डेली हो रहा था. तो ये डेली, जैसे मैंने आपको बताया, सुबह सुबह जो बता रहे थे कि सुबह 3 साढ़े 3 बजे बड़बुकुलु आता है, उसके बाद बाल संतड़ू आते हैं, उसके बाद जंगम लोग आते हैं, उसके बाद हरिदासुलु आते हैं. तो ऐसे कितने तरह के लोग जो हैं हर दिन गांव में आ रहे हैं, एक दिन की बात नहीं है. तो जो प्रभात फेरी आजकल बहुत सारी जगहों पे चल रही है, मॉर्निंग प्रभात फेरी चल रही है, शाम को भजन संध्या हो रही है बहुत सारी जगहों पे, ये तो सोसाइटी के आपस में मिलके करने वाली चीज पे, दे आर नॉट एक प्रकार से जाति आधारित काम नहीं है. लेकिन भिक्षावृत्ति जाति आधारित काम जिनको समाज ने व्यवस्थित किया था, बिकॉज दे वेर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन द सोसाइटी. तो वो ये दो चीजें हैं, दोनों चीजें समांतर भी चली है, बट उसका बहुत उस सेंस में संबंध नहीं है कि भिक्षावृत्ति से उसका संबंध क्या है करके. हाँ, आप इस सम्मेलन के बारे में कुछ बता सकते हैं कि डेट्स और कौन अटेंड कर जी सकते जी हैं जी. और क्या आप व्हाट आर द टॉपिक्स दैट यू हैव सेलेक्टेड? राइट राइट राइट. सी, इसमें ये जो उत्सव है भिक्षावृत्ति का उत्सव, ये 27, 28 और 29 दिसंबर 2024 को हो रहा है. और जबलपुर के पास, जबलपुर शहर मध्य प्रदेश में है, इसके पास 30 किलोमीटर दूर एक गांव है इंद्राना, वहाँ ये हमारा एक कैंपस है जीविका आश्रम का. तो उस कैंपस में ये 3 दिन का इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है. और इसमें सभी लोग भाग ले सकते हैं, जो भी भाग लेना चाहें, जो भी इस चीज को इच्छुक हैं, भिक्षावृत्ति को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं. तो इसमें 3 4 तरह की गतिविधियां होंगी. पहला तो ये होगा कि इन सारे लोगों से परिचय होगा. फिर इनके अलग अलग राज्यों से भिक्षावृत्ति जाति के लोग आ रहे हैं, उनके कला प्रदर्शन होंगे. और उनके साथ साथ उस विषय पे बातचीत करने वाले एक्सपर्ट्स आ रहे हैं अलग अलग जगहों से. तो उन एक्सपर्ट्स के माध्यम से प्लस इन कला जातियों के लोगों के माध्यम से हम उस कला जाति उस भिक्षावृत्ति जो अवधारणा है, की कल्पना है, जो कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे. और ये 3 दिन का बहुत इंटरेक्टिव टाइप का रहने वाला है. इसके साथ साथ सुबह सुबह डेली इन भिक्षावृत्ति वाली जातियों के साथ में वर्कशॉप भी होंगी. जो उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहे, देखना चाहे, जानना चाहे, बनाना सीखना चाहे, ये सारी चीजें उसमें होंगी. साथ ही साथ कारीगर बाजार भी होगा, जो स्थानीय क्षेत्र के जो कारीगर है, आर्टिसंस है, क्राफ्ट बाजार एक उनका होगा. तो ये सारी चीजें उसमें होंगी. जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहे उसके लिए एक लिंक दिया हुआ है, खासकर रेसिडेंशियल प्रोग्राम, रेसिडेंशियली जो ज्वाइन करना चाहे, तो यू विल हैव टू रजिस्टर फॉर दैट. तो लिंक आई विल शेयर विथ यू, which you can share with your people, through which they can sort of register themselves and take part in this program. Thank you, sir. And how is this Sammelan connected to the other activities of Jivika Ashram? Could you See, tell us about Jivika Ashram, what is the vision of Jivika Ashram? right. See, Jivika Ashram, what we are trying to do is कि some जो भी हमारे सोसाइटी के कुछ प्रिंसिपल्स हमको समझ में आए हैं कि हमारे हिसाब से सोसाइटी के क्या प्रिंसिपल है, और जो मेजरली जो 4 प्रिंसिपल है वो है विज्ञान, कला, अध्यात्म और सामाजिक अर्थशास्त्र. तो जो अर्थशास्त्र इन सब चीजों को करने वाला है वो सामाजिक अर्थशास्त्र है. विज्ञान से संबंधित जितनी, विज्ञान इन द सेंस ऑल योर आर्टिसनल फॉर्म्स जितने हैं, पाक कला से लेके बाकी सारी चीजों में कलाएं हैं, जो विज्ञान है. फिर कला से संबंधित जितनी चीजें हमारी सोसाइटी में कभी किसी समय में रही है, भारत के समाज में, भारत के गांवों में खासकर.
और अध्यात्म, इन सब के माध्यम से अध्यात्म कैसे पोषित होता रहा, और इन तीनों चीजों को पोषित करने के लिए, सस्टेन करने के लिए जो अर्थशास्त्र था, वो कैसे, अर्थशास्त्र किस तरह का था, सामाजिक जिसको हम लोग सामाजिक अर्थशास्त्र बोलते हैं, असामाजिक जो आज का अर्थशास्त्र है वो तो पूरी तरह से असामाजिक अर्थशास्त्र। तो हाउ दीज थिंग्स वे सस्टेनिंग इन द सोसाइटी फॉर सो लॉन्ग। सो इन सारी चीजों के ऊपर में बातचीत होती है, अध्ययन होता है, अलग अलग तरह की कार्यशालाएं होती है। तो उसी सीरीज में ये कला के अंतर्गत ये कार्यशाला हम लोग देख रहे हैं कि जो जो वृक्षारोपी की जातियां जो हमारे यहाँ आ रही हैं, जो कला को सबसे ज्यादा पोषित करती रही हैं, और उसके माध्यम से समाज में आध्यात्मिकता, सामाजिकता, बाकी सारी चीजें भी पोषित होती रही हैं। तो उस दृष्टि से ये जीविका आश्रम की मेन गतिविधियों में भी शामिल होता वेरी नाइस सर। और आपका और जीविका आश्रम का संबंध कैसे शुरू हुआ? है। हम्म। देखिए, मैं काफी समय तो कॉर्पोरेट्स वगैरह में काम किया है मैंने काफी जगहों पे, और जो सीएक्सओज वाली पोजीशंस होती हैं वो सारी जगहों पे रहा। फिर ये लगा कि नहीं, ये हमारी, हमको अपनी संस्कृति को समझना है, जाति चीज को देखना है, हमारी भारतीय व्यवस्था को देखना है, सभ्यता को देखना है, तो फिर कुछ समय देना पड़ेगा। और सौभाग्य, ये मेरा सौभाग्य रहा कि अपने जीवन के बहुत शुरुआती समय में ही इस विषय के जो बड़े अध्येता रहे हैं, श्री रविंद्र शर्मा जी, जिनको फॉन्डली लोग गुरुजी कहते थे, आदिलाबाद के रहने वाले थे, वो अब तो हमारे बीच में नहीं है। तो उनसे आई गॉट इन टच विथ हिम, और लंबा समय उनके साथ, मुझे लगभग 1.5 दशक का, 1.5 क्या बोलते हैं, दशक को क्या बोलते हैं भाई, सो जो 10 सालों का जो पीरियड है, तो सब 18, ओके। हाँ, तो 18-20 साल का लगभग उनके साथ में सानिध्य मिला। और उससे ये चीज समझ में आई, और जब ये समझ में आई तो फिर ये हुआ कि नहीं, इसको खाली समझ के रखने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग अपने रहने के लिए पहले जीविका आश्रम हमने बनाया इंदिराना गांव में, और फिर ये लगा कि नहीं, इसमें बहुत सारे लोगों, और अन्य लोगों की रुचि है, तो धीरे 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 ये फैलता चल रहा है। तो यही जुड़ाव है हमारा। तो मैं अभी परिवार के साथ में यही जीविका आश्रम में रहता हूँ, यही बनाया हुआ है। लगभग 3-3.5 एकड़ में ये कैंपस है, और इन जबलपुर के मध्य, क्योंकि जबलपुर एक जो सो कॉल्ड एमपी जो है, सो कॉल्ड अंडर डेवलप्ड स्टेट है। तो वो अंडर डेवलप्ड स्टेट होने के कारण बहुत सारी चीजें हमारी अभी भी बची रह गई हैं, जो भारतीय ग्रामीण परिस्थितियों की, ग्रामीण व्यवस्थाओं की जो चीजें हैं, अभी भी इन समाजों में हमको देखने मिल जाती है। तो उसी उसी के तहत हम लोगों ने सोचा कि इसको क्यों ना यहीं पर बनाया जाए। और मैं वैसे भी जबलपुर का ही रहने वाला था, दैट्स हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग हैज कम अप। Wonderful, sir. Thank you so much and wishing you all the very best for the Sammelan. And I'm sure we'll थैंक have a यू। lot to learn. And thank you for preserving this great tradition. Yeah, thank you. We are trying to do this. Let's see how it turned out to be, because this is also one of the first time the people are doing it. Ravin Sharma Guruji has done this in Adilabad once. So taking the inspirations from him, we are doing it here in Jabalpur. Let's see how it turns out to be. I'm sure it's a wonderful documentation of these traditions. And Indic Right, Academy right, is very right. happy to be a part of this. Yeah, thank you, thank you, thank you very much. Yeah. Thank you. I'll just stop the Thank recording. you.